Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. I hope you are all well. Students, in our previous video, we read poem Run and we wrote it in our English notebook. I hope you have completed your work. Now go forward. Today we will do its word meaning, question answer and exercise. Okay, now see it. Students, you will start your work like this. After completing your poem, what you will do? You will put date, then you will write poem name Run with your black pen. And listen one thing very carefully. Don't use pencil for writing because in 4th standard, pencils are not allowed for main course book. For main subject, English pencil is not allowed. Only for your drawing part you can use your pencil. Otherwise, for writing portion you will use your black and blue pen. Students, so what you will do? First of all, you will write poem name Run. Then one side you will write word and second side you will write meaning. Now see, I have written raindrops. Raindrops is your first word. अब raindrops means क्या होता है? बारिश की बूंदें. Drops of rain. Second one है need, beneath. दोनों का मीनिंग एक ही होता है. need कहें या beneath कहें, और इसका मीनिंग है under. under means नीचे. breeze. breeze means होता है a gentle wind यानी सुहावनी हवा. फिर है hillside. hillside means द साइड ऑफ अ हिल. किसी हिल का कोई साइड, एक साइड. साइड यानी हिस्सा, किसी हिल का, किसी पहाड़ी का कोई हिस्सा. देन है मीडो. मीडो मीन्स होता है पास्चर लैंड. पास्चर लैंड यानी वो जगह जहाँ पर एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं. ग्रेजिंग यानी जहाँ पर चारा चरते हैं. अ पीस ऑफ ग्रास लैंड. कोई जो ग्रास लैंड होता है यानी कोई ग्राउंड होता है घास का, इट इज़ कॉल्ड मीडो. लास्ट वन इज मेरी. मेरी मीन्स होता है चीयरफुल. चीयरफुल मीन्स खुशी, उत्साह. सो दीज आर योर वर्ड मीनिंग. नाउ सी इट्स क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू. पोएम हमें क्या करने को बोलती है, हमें क्या करने के लिए कहती है. द poet tells us to run throughout the day away from the city towards the countryside. The poet tells, जो poet है वो कहता है, us हमें, to run रन करने के लिए, throughout the day पूरा दिन, away from the city सिटी से दूर, towards the countryside और किसकी तरफ? विलेज की तरफ, गांव की तरफ. तो पोएट हमें बोलता है कि पूरा दिन तुम क्या करो? रन करो सिटी से दूर और कंट्री साइड यानी विलेज की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन. राइट अबाउट द प्लेसेस, उन प्लेसेस का नाम लिखिए. वेयर द पोएट वांट्स, जहाँ पर पोएट चाहता है, अस हमसे, टू रन कि हम वहाँ पर रन करें. आंसर है द पोएट वांट्स अस टू रन टुवर्ड्स द कंट्री साइड, under the trees, down the hillside, up the street, through the meadow. तो पोएट हमसे चाहता है टू रन कि हम रन करें टुवर्ड्स द कंट्री साइड, गाँव की तरफ, अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे यानी पेड़ों की छाँव के नीचे, डाउन द हिल साइड हिल साइड से नीचे, हिल साइड से जो स्लोप्स होते हैं उनमें हम दौड़ते हुए नीचे जो आते हैं वैसे हम रन करें. अप द स्ट्रीट गलियों में, थ्रो द मीडो और जो हमारे ग्रासलैंड होते हैं एक पार से दूसरी तरफ हम उसमें रन करें. सो देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस इन योर बुक. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्ड मीनिंग you will do these question answer in your notebook. Now see your another exercise. Let's talk. इसे हमें लिखना नहीं है,
सिर्फ हमें इसके बारे में बात करनी है. लिसन वेरी केयरफुली, डोंट राइट इट इन योर इंग्लिश नोटबुक and listen the video very carefully. Don't do it in your English notebook. It is only for talking. First question, do you like to play and run about? Why? क्या आपको खेलना और दौड़ना पसंद है? Why? क्यों? तो आपने आंसर लिखना है yes. लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है yes, because everyone loves running and playing. Yes, I like to play and run about because both these activities make me happy and healthy. Yes, हाँ, I like to play and run. मुझे खेलना और दौड़ना पसंद है. Because क्योंकि both these activities, जो ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं, make me happy and healthy. ये मुझे खुश करती हैं और हेल्दी बनाती हैं. सेकेंड है, running is very good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. Running is very good exercise. Running बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. Name any 3 games. आपको 3 games के नेम लिखने हैं. That you play in which you have to run. कि जिसमें खेलने में आपको क्या करना पड़ता है? रन करना पड़ता है. आंसर इज कबड्डी, क्रिकेट एंड रेस. But students, don't write it in your English copy. It is only for your conversation. Now students, what you have to do? Now make one more question for each picture. आपको जो हर एक पिक्चर है उसके लिए एक क्वेश्चन बनाना है. Write the question in the space below. और जो नीचे स्पेस दिया है उसमें उसको आपको क्वेश्चन को लिखना है. Use, आपको इस तरह के जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनको यूज़ करना है. हाउ मैनी, कितने, व्हाट आर, क्या हैं, वेयर आर, इज़, हाउ, वाई, टू मेक क्वेश्चन. आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज़ करना है क्वेश्चंस बनाने के लिए. अब इसमें आंसर उन्होंने दिए हैं, पिक्चर्स हैं. जैसे 4 बॉयज़ हैं. हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग इन द रेस? यू नो द आंसर, दे आर 4. सेकेंड पिक्चर सी, व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग? अब बॉयज़ जो हैं वो बोट चला रहे हैं. व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग? क्वेश्चन बना. वाई आर द बॉयज़ पुलिंग द रोप? बॉयज़ हैं वो पुलिंग कर रहे हैं रोप को. व्हाट इज़ मोहन डूइंग? मोहन क्या कर रहा है? व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग? गर्ल क्या कर रही है? हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग? कितनी गर्ल्स स्विमिंग कर रही हैं? तो ये क्वेश्चन बन गए हैं. जो वो क्वेश्चन बने थे अब उनके आंसर हैं. लेट्स राइट. इसे बुक में ही करना है. डोंट यूज़ नोटबुक फॉर योर दिस वर्क. ओनली वर्ड मीनिंग एंड जो 2 क्वेश्चन आंसर हैं वही आपको नोटबुक में करना है. एंड रेस्ट ऑफ वर्क फॉर योर बुक. आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज. जो पिछले पेज में आपकी पिक्चर्स थी, अब आपको क्या करना है, वो पिक्चर्स को देखकर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं. What is happening in picture 5? पिक्चर 5 में क्या हुआ है? See your picture 5. गर्ल इज डाइविंग. जो गर्ल है वो डाइविंग कर रही है यानी गोता लगा रही है. सो आंसर विल बी देयर. द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर. जो गर्ल है वो पानी में गोता लगा रही है. सेकेंड है, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4? पिक्चर 4 में मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है? ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप. वो हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है. सेकेंड है आपका, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3? अब अनिल और उसके फ्रेंड्स पिक्चर 3 में क्या पुलिंग कर रहे हैं यानी क्या खींच रहे हैं? दे आर. अब हमने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ कर लिया है अनिल और उसके फ्रेंड को मिलाकर. दे आर पुलिंग आ रोप. वो एक रोप को यानी रस्सी को पुलिंग कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं. Where are the boats racing in the picture 2? They are racing in a river. वो रिवर में रेस लगा रहे हैं. What are the boys doing in picture 1? पिक्चर 1 में बॉयज़ क्या कर रहे हैं? They are running race. वो रेस लगा रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं. फिर है 5th, What are the girls doing in picture 6? They are स्विमिंग. वे स्विमिंग कर रही हैं. स्टूडेंट्स,
लेट्स लिसन, ये आपको सुनने हैं। से द वर्ड्स अलाउड, ये वर्ड्स आपको ज़ोर से बोलने हैं, 1 by 1, एक एक करके। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली, और आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, इनको आपने फॉलो करना है और अपनी बॉडी को वैसे ही अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। जैसे शोल्डर्स हैं, आपके शोल्डर से मूव देम अप एंड डाउन, उनको अप एंड डाउन मूव करिए। फीट हैं, वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आप आगे और पीछे करिए अपने फीट को। रन करिए फास्ट एंड स्लो। हैंड्स करिए, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, उन्हें राइट एंड लेफ्ट मूव करिए। These all things are for your book. Say aloud, ये चीज़ें आपको ज़ोर से बोलनी है। Beneath, breeze, meet, fear, each, meadow. Practice several times, ये आपको कई बार प्रैक्टिस करने हैं बोलकर ज़ोर ज़ोर से। Now see, let's spell. Some letters are missing in each word. Write double E or EA in each word. देखिए, trees, sleep, please, beep, tease, feet, teach, meet. Now add more words with double E and EA and put them inside the bubbles. Bubbles के अंदर आपको लिखने हैं। डबल ई और EA है, वन साइड डबल ई के वर्ड्स हैं और वन साइड EA के हैं। लाइक कीप, जीप, पीप, दीप, पीक, सीड, फीड, सीक। और EA के हैं रीप, लीप, फियर, नियर, टीयर, टीक, पीक, पियर। Students, your poem run, its question answer and exercises have been completed. In our next video we will learn next other things and we will start your new chapter, Nasruddin's M.